Well, let's go to today's word. आइए हम वचन की तरफ I जाएं। want you to open your Bibles to Proverbs chapter 24, आइए नीति वचन उसका 24 खोले, verse number 30 to 34. 30 से 34 तक। Yesterday, we had a great discussion on this verse. कल हमने इस वचन के ऊपर काफी सारे बातें की, The context was marriage, तो हम शादी के बारे में बात कर रहे but today थे। the context is life. पर आज का जो ये है वो है जीवन। I want to talk this verse in reference to our life. ये वचन मुझे जीवन के बारे में बताना है। The Bible says, I went by the field of the slothful and by the vineyard of the man void of understanding. मैं आलसी के खेत के पास और निर्बुद्धि मनुष्य के दाग की बारी के पास होकर जाता था। And lo, it was all grown up over with thorns, and nettles had covered the face thereof, and the stone wall thereof was broken down. तो क्या देखा कि वहां सब कहीं कटीले पेड़ भर गए हैं और वहां बिच्छू पेड़ डब गए हैं और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है। The Bible declares here, वचन बताता है यहाँ पे, the wisest man Solomon learned a practical application by observing something. तो जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था इस धरती पे सुलेमान, उसने देखा कि जीवन में ध्यान कैसे देते हैं बातों पे। See, sometimes we don't have to suffer to learn. कई बार ऐसे नहीं होता है कि हमें किसी संघर्ष के द्वारा जाना होता है कुछ सीखने के You लिए। know, a wise person can see somebody else suffer and learn. एक बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो दूसरों को देख के खुद सीख जाता है। You don't have to be punished and learn. ऐसा नहीं कि आपको समस्या के द्वारा जाना है फिर आप सीखोगे। You can see somebody get punished and penalty happens to him, and you can learn from that, their experience. ऐसे हो सकता है कि आपने किसी और को देखा कि वो किसी प्रॉब्लम के थ्रू गए और आपने उनसे सीखा। Solomon says सुलेमान कहता है, that I passed through the field of a sluggard. और सुलेमान कहता है कि मैं किसी आलसी व्यक्ति के खेत के द्वारा And गया I saw three things. और मैंने 3 चीजें देखी। I saw that this man had a blessing. मैंने देखा कि इस व्यक्ति के पास एक आशीष थी। He had a field and a vineyard. उसके पास एक खेत था और उसके पास दाखरख का भी एक खेत था। Listen, my friend, ध्यान से सुनिए, he was a man with some things with him. एक व्यक्ति था जिनके पास कुछ तो था उसके पास। He was not somebody who didn't have anything. वो ऐसा व्यक्ति नहीं था आलसी जिसके पास कुछ नहीं था। His field talks about what he had. वो खेत बताता है उसके पास खेत था। His vineyard talks about what he possessed. जो उसके पास खेत था वो दिखा रहा था उसके पास क्या है। He had a property. उसके पास एक प्रॉपर्टी थी। He had an asset. उसके पास एक एसेट था। He had something that if he chose to work with it, could do wonders for him. उसके पास ऐसा कुछ था, अगर उस पे वो काम करता तो उसके पास काफी भली बातें आती। Listen, there is nobody on the planet Earth whom God has not given a gift. ऐसा कोई भी धरती पे व्यक्ति नहीं जिसको परमेश्वर ने कुछ दिया ना हो। You have your talents. आपके पास टैलेंट्स You है, have your gift. आपके भेंट आपके You have पास, got your skills. आपके पास स्किल्स है, You have got your knowledge. आपके पास बुद्धि है, You got something. आपके पास कुछ तो है। If that something is utilized properly, अगर इस बात का आप अच्छे से उपयोग करोगे, it is a doorway for your prosperity. वो एक द्वार बन जाता है आपके उन्नति के लिए। But if you do not utilize what God has already given you, जो परमेश्वर ने आपको दिया, अगर आप उसका उपयोग सही से नहीं करोगे, then this will happen. What happened to this man? तो आपके साथ वो होगा जो ये आलसी व्यक्ति के साथ हुआ। Look what the Bible says. देखिए वचन क्या कहता है, I was there by the field of the lazy man and by the vineyard of this man who was devoid of understanding. मैं आलसी के खेत के पास और निर्बुद्धि मनुष्य की दाग की बारी के पास से होकर जाता था। Isn't it strange that he is devoid of understanding, but he has a possession? एक काफी अद्भुत सी बात है कि ये व्यक्ति के पास बुद्धि नहीं है पर उसके पास प्रॉपर्टी है। So many people have certain great talents in them. काफी लोगों के पास काफी अद्भुत से टैलेंट्स होते हैं They don't know what to do with it. पर उनको नहीं पता उसका क्या करें। They have knowledge. उनके पास बुद्धि है, ज्ञान है, They don't know what to do with it. उनको पता नहीं उससे क्या करना They है। have skills. उनके पास स्किल्स है, They don't know what to do with it. उनको नहीं पता क्या करना उससे। Sometimes they know, but they're too lazy to put it to work. कई बार उन्हें पता होता है क्या करना है पर वो काफी आलसी होते हैं। And then what happens? और फिर क्या होता है, Verse 31 says, and there it was all overgrown with thorns, and the surface was covered with nettles. तो वहां उन्होंने देखा कि कटीले पेड़ वहां भर गए थे उनके खेत में और बिच्छू पेड़ों भी भर गए थे उनके जगह पे। The Bible says, वचन कहता है, a productive soil was producing, but it was producing something that was not beneficial. जो धरती थी वो कुछ तो उपज दे रही थी पर वो अच्छी उपज नहीं दे रही थी। Listen, ध्यान से सुनिए,
Just because you're not paying attention does not mean it will stay where it is. जब आप कभी ध्यान नहीं देते हो इसका मतलब ये नहीं जो आपने उगाया है वो वैसा ही अपने आप अच्छा उगते जाएगा। The Bible says वचन कहता है it was all grown over with thorns. कि वहां पर काफी कटीले झाड़ थे। That tells me वो मुझे बताता है there was growth in that land. कि वहां पे कुछ तो उग रहा था। It was not a barren land. वो काफी सूखी जमीन नहीं थी। There was growth, कुछ तो बढ़ रहा but the था wrong things were growing. पर गलत बातें बढ़ रही थी। Listen carefully. ध्यान से सुनिए। We may think, well, I'm not doing anything. हम कभी सोचते हैं मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा Listen हूँ, carefully. पर ध्यान से सुनिए। Just because you're not doing anything अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो does not mean it is all right. इसका मतलब नहीं कि वो सब सही रहेगा। If you don't pay attention to what God has given to you, जो परमेश्वर ने आपको दिया अगर आप उस पर ध्यान नहीं दोगे I have news for you. तो मुझे आपको बताना है You will start losing it. तो आप उसे खो लोगे। Listen carefully. ध्यान से सुनिए। What you fail to manage, you lose. जो आप संभाल नहीं सकते आप उसको खो लोगे। Whether it is family, चाहे वो आपका परिवार हो, you neglect your family, अगर आप ध्यान नहीं दोगे you परिवार पे, neglect your spouse, अगर आपके पति पे ध्यान नहीं you दोगे, neglect your children, आपके बच्चों पे ध्यान नहीं दोगे, you know what? आपको पता है क्या? You'll start losing them. आप उनको खो लोगे। Then you will see, I never taught my child how to speak lie. तो आप बोलोगे मैंने अपने बच्चे को झूठ बोलना नहीं सिखाया, I never taught him how to do this arrogant thing. मैंने उसको ये घमंड वाली बातें करना नहीं सिखाया, Because you neglected training him in the truth. क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया उसको सिखाने के लिए, You did not discipline him when he needed it. आपने उसको सही नहीं किया सही वक्त पे, Thorns and thistles have come up. तो जो कटीले पेड़ है उसके जीवन में आ जाएंगे। Now listen carefully. ध्यान से सुनिए। What does thorns symbolic of? जो कांटे वाले पेड़ होते हैं उसका मतलब क्या होता है? See, there are two things. Bible talks about that bushes come up. दो बातें हैं कि कटीले पेड़ आ जाते हैं, That his whole thing was grown up with thorns and the surface was covered with nettles. कि जो दूसरा कहता है कि बिच्छू पेड़ों से भी डब गए थे। The Bible talks about वचन कहता है that something occupied the space, कुछ तो वो जगह में भर गया था but it was painful. पर वो दुख देने वाली बातें थी। Thorns are painful. जो कांटे होते हैं वो दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं। You didn't sow it, आपने उसमें को बीज नहीं but they वो किया, grow because of the neglect. पर वो बढ़ जाते क्योंकि आप ध्यान नहीं देते। Your marriage from celebration will go into painful experience if you neglect it. अगर शादी में आप ध्यान नहीं दोगे तो आप एक वक्त पे आनंद मना रहे हो पर ध्यान नहीं दोगे तो एक वक्त आपके लिए वो दुख का कारण बन जाएगा। Same principle applies to your work situation. वही सिद्धांत आपके काम के जगह पे भी सेम है If आपके you लिए। neglect your work, अगर आप काम पे ध्यान नहीं दोगे guess what will happen? तो देखिए क्या होगा, You will lose it. आप उसे खो लोगे, Somebody else will replace you. कोई दूसरा आपके काम के जगह पे आ जाएगा। It's very interesting to understand the word used for laziness here is called lack of understanding or wisdom. जो वचन यहाँ पे यूज किया गया आलसी के लिए, वो वचन का अर्थ है कि जिस व्यक्ति को समझ नहीं होती। A person lacking sense lacks judgment to maintain, guard, steward what God has entrusted him. जो वचन है आलसी उसका मतलब है एक व्यक्ति जिसको समझ नहीं होती परमेश्वर ने जो उसे दिया उसका ख्याल कैसे रखना है, उसको उसका ध्यान कैसे देना है। Listen carefully. ध्यान से सुनिए। The thorns are the things that grow automatically. कांटे एक ऐसी चीज होती है जो खुद से ही बढ़ जाते हैं। Whenever the land is unattended, thorns come up. जिस जगह पे ध्यान नहीं दिया जाता वहां पे कांटे अपने आप आ जाते हैं। What does it mean for you spiritually? ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए इसका मतलब क्या है? What does it mean for you financially? ये आपके आर्थिक जीवन के लिए क्या रखता है It मतलब? is true. ये सच्ची बात है। Listen carefully. ध्यान से सुनिए। If you neglect your marriage, distance between couple will grow. आपके शादी में अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आप दोनों के बीच में काफी दूरी आ जाएगी। You neglect your calling that God gave you, and confusion in your life will grow. जो बुलाहट आपके जीवन पे अगर आप उस पे ध्यान नहीं दोगे तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा। You neglect the body, the physical body God gave you, जो शरीर परमेश्वर ने आपको दिया अगर आप उस पे ध्यान नहीं दोगे sicknesses will grow. तो बीमारियां आएगी। You neglect the mind God gave you. अगर जो मन परमेश्वर ने आपको दिया उस पे ध्यान नहीं दोगे Guess what? तो सोचिए क्या होगा। Anxiety will grow. जो टेंशन है वो आपके दिल में बढ़ जाएगा, Fear will grow. जो डर है बढ़ जाएगा।
You neglect the ministry God has given you, जो सेवकाई प्रभु ने आपको दी, अगर आप ध्यान नहीं दोगे उस पे, disorder will grow. तो उसमें चीजें सही नहीं रहेगी. Guess what happens? उसके बाद क्या होगा? You neglect the fellowship God gave you. जो संगति परमेश्वर ने आपको दी है, Loneliness will grow. अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो उसमें अकेलापन आएगा. Praying every day to God, walking with God every day does not remove loneliness. परमेश्वर से रोज प्रार्थना करना और उसके साथ साथ चलना आपके अकेलेपन को दूर नहीं करता. Listen carefully. ध्यान से सुनिए. Adam would walk with God every day. आदम रोज परमेश्वर के साथ साथ चलता था. And God said it is not good for him to be alone. और परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य के लिए अकेला होना सही नहीं है. Listen carefully. ध्यान से सुनिए. There is a reason why God put us into a church. एक कारण है कि परमेश्वर ने हमें कलीसिया में डाला है. Some people become complacent about church. कई लोग ना आराम की जगह पे चले जाते कलीसिया में. They say, why to go every Sunday? वो कहते कि हर रविवार क्यों जाना है. Yes, I have phone. I can watch good messages. वो कहते हैं मेरे पास फोन है, उसमें मैं मैसेज देख लूंगा. But church is not about message alone. कलीसिया सिर्फ संदेश के बारे में नहीं है. Church is called fellowship. कलीसिया का मतलब है संगति करना. It is called meeting and greeting each other. इसका मतलब है एक दूसरे से मिलना और संगति करना. Praying for each other. एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना. Building each other. एक दूसरे को बड़ा करना. Helping each other. एक दूसरे की मदद करना. It's encouraging each other. एक दूसरे को प्रोत्साहन देना. Together we will live and do our life together. एक साथ हम जीते हैं और जीवन करते हैं. The Bible says वचन कहता है that Solomon saw that the field of the lazy man had these problems. सुलेमान ने देखा कि एक आलसी व्यक्ति का जो खेत था उसमें समस्या थी. Sharma ji just mentioned that we were in Indore last week. शर्मा अंकल ने बात बताई कि हम इंदौर में थे पिछले हफ्ते. While we were driving back from the highway, तो जब हम हाईवे से वापस आ रहे on थे both the side there were fields. तो दोनों बाजू खेत थे. And as I began to look at those fields, जब मैं वो खेत को देखने लगा some fields were lush green तो कोई कोई खेत थे जो काफी हरे भरे थे and some fields were exactly like this what he's talking और about. कोई कोई खेत ऐसे वचन के ही जैसे थे. As I kept on looking at them, जैसे मैं उन पे ध्यान देने लगा this verse started ringing in my mind. ये वचन मेरे दिमाग में आने लगा And I thought, oh my God, और मैं सोचने लगा हे परमेश्वर, so true. ये सच्ची बात है. If we neglect our areas of responsibilities, problems will arise. अगर परमेश्वर तूने जो जिम्मेदारियां हमें दिया अगर हम उस पे ध्यान नहीं दे तो समस्या आएगी. Listen, the Bible says, वचन कहता है and I saw that its stone wall was broken. और मैंने देखा उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है. What could be a stone wall? ये पत्थर का बाड़ा क्या हो सकता है? The stone wall is very interesting thing. ये जो पत्थर का बाड़ा है वो काफी अद्भुत सी बात है. It's protection. वो हमें सुरक्षा देती है. The protection was broken. जो सुरक्षा का बाड़ा था वो टूट गया था. If you don't attend your life, अगर आप आपके जीवन पे ध्यान नहीं whether दोगे, it is your family, अगर वो आपका परिवार हो, whether it is your finance, वो आपका पैसा क्यों ना whether हो, it is your spiritual life, वो आपका आत्मिक जीवन क्यों ना whether हो, it is your emotional life, वो आपका इमोशनल लाइफ whether क्यों ना it is हो, your physical life, वो आपका शरीर ही क्यों ना हो, whether it is your relationships, वो आपके संबंध क्यों ना हो, anything you stop paying attention to wither away. जिस चीज पे आप ध्यान नहीं दोगे वो गायब हो जाएगी. But it not just withers away, but instead of what you wanted, problems arise. कई बार आप उसको खो नहीं लेते हो पर उसका जो वातावरण है वो बदल जाता है, वो आपको दुख देने लगता As है. I told you, जैसे मैंने आपको बताया that the nettles or the thorns are symbolic of pain. जो बिच्छू पेड़ है वो एक दर्द को दर्शाता है. Our neglect not only not does anything, but it produces painful experiences in life. जब हम किसी चीज पे ध्यान नहीं देते तो ऐसा नहीं कि कुछ नहीं होता, पर जब हम ध्यान नहीं देते तो दुख बढ़ने लगता है. Small negligence today छोटा जो हम चीजों पे ध्यान नहीं देते आज, becomes painful regret tomorrow. तो कल के वक्त हमारे लिए वो काफी दुख की बातें बन जाएगी. So what are you neglecting constantly? तो आपके जीवन में ऐसी कौन सी बात है जिस पे आप ध्यान नहीं दे रहे Is हो? it your prayerful life? क्या वो आपका प्रार्थनामय जीवन Is है? it meditating on the word of क्या वो God? वचन पे मनन करना है? Is it your generosity? क्या वो आपका देना है? Because if you neglect giving, अगर आप ध्यान नहीं देते आपके देने पे you know something will happen. तो कुछ तो होगा. The Bible says वचन कहता है there is a one
एक व्यक्ति है who scatters जो बोता है हर जगह and grows. और वो बढ़ने लगता There is है, another one और एक दूसरा व्यक्ति who है holds his feet tight और कोई है जो अपने हाथों को मुट्ठी को पकड़े रखता है and loses what he has. और वो खो लेता है जो उसके पास भी है। Listen, you may think that I will preserve it. आप सोच रहे हो कि मैं चीजों को संभाल के रख रहा You will हूँ, lose it. पर आप खो लोगे उन But बातों if को। you release it, पर अगर आप उसको छोड़ दोगे, you will grow in it. आप बढ़ने लगोगे उसमें। Generosity जो उदारता से should देना है not be neglected. वो उसको ध्यान नहीं देना, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। Intentionally, you should grow in generosity. आपको उदारता से देना जरूरी है। That's why God orchestrated tithes and offering in the church. इसलिए परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि दशवांश और आपका भेंट देना जरूरी It's है। not just that the poor and needy's help will be done. ऐसा नहीं कि सिर्फ गरीबों को मदद होती है उसके द्वारा, It is so that you may prosper. वो इसीलिए ताकि आप उन्नति पाओ। Because God cannot bless a stingy person. परमेश्वर उस व्यक्ति को आशीष नहीं दे सकता जो कंजूस है। See, God gave you a land, परमेश्वर ने आपको एक जगह दी, but now there is thorns and thistles. पर वहां पे अभी कांटे हैं और बिच्छू पेड़ है। God gave you a vineyard, परमेश्वर ने आपको खेत दिया, but now there is full of troubles पर वहां पे अभी समस्याएं हैं। and even broken walls. वो वहां पे जो वॉल है वो भी टूट It's गया a है। dangerous thing to live like that. तो ये काफी डेंजरस बात है ऐसा जीना। The boundary wall, when it is broken, जो बाउंड्री वॉल है जो वो टूट जाता है, it says that people from outside can come in, animals can come in, anybody can come in. अगर वो जो बाड़ा है जब वो टूट जाता है तो जानवर आने लगते हैं, लोग आने अंदर लगते हैं, There is no protection. तो वहाँ पे सुरक्षा नहीं The होती। Bible says something very clear. वचन काफी स्पष्ट बताता Verse है, number 32. 32 वचन, When I saw it, जब मैंने देखा I considered it well. और उस पर ध्यान पूर्वक विचार किया, Yet a little sleep, a little slumber, a little folding of hands to sleep. छोटी सी नींद और थोड़ी सी झपकी, थोड़ी देर हाथ का हाथ रख कर और लेट रहना, So shall your poverty come like a prowler, and your need like an armed man. तब तेरा कंगालपन डाकू की नाई और तेरी घटी हथियार बंद एक समान आपके तरफ आएगी। Why is a man who has a field is living in a condition of poverty? ऐसा क्यों है एक व्यक्ति जिसके पास खेत है वो कंगालपन में जी रहा है? Because let me tell you, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ, neglect is expensive. ध्यान नहीं देना आपको उसका कीमत चुकाना पड़ता है। Neglect is always costly. It will cost you. जो ध्यान जब नहीं देते तो वो काफी आपको कीमत You चुकाना stop पड़ता paying है। attention to your body, आप खुद के शरीर पे जब ध्यान नहीं देते हो medical bills will pile up. तो जो मेडिकल बिल है वो बढ़ते जाते हैं। You start paying, neglecting your marriage, जब आप आपकी शादी पे ध्यान नहीं देते expenses will rise up. तो जो एक्सपेंसेस है बढ़ने लगते हैं। Why? क्यों ऐसा? Because a person will try to find entertainment somewhere outside marriage. क्योंकि एक व्यक्ति है जो अपने खुशी को फिर बाहर ढूंढना शुरू करता है, And then he will spend money over nonsense. तो वो गलत बातों पे अपने पैसे डालना शुरू Some करता may है। go into wrong addictions. कई बार काफी लोग गलत संगति में चले Spend जाते money हैं, into wrong things. वहां पे गलत चीजों में पैसा डाल देते हैं। People go into all kinds of nonsense because they don't know what to do with God has given them. लोग कई बार गलत संगति में इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं जो परमेश्वर ने दिया उसका क्या करना And है। the Bible says your poverty will come. और वचन कहता है आपका कंगालपन आएगा। If you don't do with diligence, अगर आप ध्यान से चीजें नहीं करोगे, you will live a poor life. आप एक कंगालपन का जीवन जियोगे। It's not that God didn't bless me. ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने आशीष नहीं दी, God bless you. परमेश्वर ने आशीष दी, You didn't know what to do with it. आपको नहीं पता तो उससे You क्या will say, करना है। Pastor, you don't know my condition. I don't have anything else. आप पासवान को कहोगे कि अरे आपको पता नहीं मेरे पास कुछ नहीं है। Listen to me. मेरे से सुनिए, Do you have a Bible? क्या आपके पास वचन है? Do you have a Bible? क्या आपके पास वचन है? Is there anybody in this room who does not have a Bible? कोई है जिसके पास बाइबल नहीं है यहाँ पे? If you have a Bible, there is no reason for you to suffer and live in poverty. अगर आपके पास बाइबल है तो आपके पास कोई भी रीजन नहीं है कंगालपन में जीने का। मुझे पास्टर क्या बोल रहा है? You'll say, Pastor, what are you saying? इसको क्या रद्दी में बेच के पैसे कमाऊं? That should I sell this book and get money from that? No, 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 no. Joshua chapter 1 verse number 8. यहोशू 1:8 कहता है, This book of the law shall not depart out of their mouth, but thou shalt meditate therein day and night, and thou mayst observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous and be in good health. व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए,
इसी में दिन रात ध्यान दिए रखना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है और उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। The recipe to success is in the Word of God. अगर आपको उन्नति पाना है तो वचन में उसका रेसिपी है। You may not have ancestral property. आपके पास प्रॉपर्टीज नहीं हो सकती है पूर्वजनों की। You may not have any great skill. आपके पास कोई बड़ा स्किल भी नहीं होगा काम You करने may का। not have any good relationship with anybody who is big. आपका शायद कोई अच्छा संबंध नहीं है किसी बड़े लोगों के You may साथ। actually be a zero. शायद आप जीरो ही रहोगे। But if you have the Word of God, लेकिन अगर आपके पास वचन है, the Word of God has a quality to pick up a zero and make him into a hero. वचन में इतनी सामर्थ्य है, वो किसी को जीरो से हीरो बना सकता है। That's why anybody who gets the Word of God, इसलिए जिस किसी के पास भी वचन है, God says, let the poor say, I am rich. इसलिए वचन कहता है कि गरीब कहे मैं श्रीमंत Let हूँ, the weak say, I am strong. कोई कमजोर कहे कि मैं सामर्थी हूँ। Why? Because the Word of God has a transformative power. क्योंकि वचन में इतनी सामर्थ्य है कि वो चीजों को बदल देता So है। if you have nothing अगर आपके पास कुछ नहीं but है just the Word of पर God, सिर्फ वचन I है, have a news for you. मैं आपको बताना चाहता In हूँ, Genesis chapter 1, उत्पत्ति 1 में there was nothing. तब कुछ भी नहीं Just था, the Word of God made everything. सिर्फ वचन ने सब कुछ बना दिया। The starting point जो is शुरुआत का वक्त give है, yourself to the Word of God. आप खुद को वचन को दीजिए। If you have lost everything in your life, अगर आपने जीवन में सब कुछ खो लिया if है, marriage is going through disaster, अगर आपकी शादी समस्या के if द्वारा जा रही finances है, are collapsing, जो आपके पैसे है उसमें if health समस्या is है, collapsing, आपके शरीर को if लैप्स you हो रहा have है, nothing else to do, आपके पास अगर कुछ करने के लिए नहीं start है, with the Word of God. तो शुरुआत कीजिए वचन के साथ। Believe in the Word of God. वचन पे विश्वास करिए, Put your eyes on the Word of God. आपका आंखें वचन पे लगाइए, Confess the promises of the Word of God. घोषणा कीजिए वचन की। And guess what will happen? फिर देखिए क्या As होगा। you obey the instructions of the Word of God, जैसे ही आप आज्ञा मानोगे वचन की, the Word will start gathering resources to you. जो वचन है वो सारी चीजों को इकट्ठा करना शुरू करेगा आपके लिए। The Word will start building your life. जो वचन है वो आपको बढ़ाना शुरू करेगा। You're getting my point? आप मुझे समझ पा रहे हो? Are you understanding? क्या आप समझ पा रहे Word हो? is the foundation. The Bible says in book of Hebrew, by the word of his mouth, the worlds were made. वचन एक नींव है, जैसे वचन कहता है कि परमेश्वर के वचन से पूरा जगत बनाया गया था। The Bible says, बाइबल कहती है a lazy man एक जो आलसी व्यक्ति है has the word, उसके पास वचन है does not do anything with it. पर वो उसके साथ कुछ करता नहीं है, Because he does not do anything with it, क्योंकि वो वचन के साथ कुछ नहीं करता। in his mind, उसके मन में thorns and thistles come. कांटे आ जाते हैं और बिच्छू पेड़ आ जाते In हैं। his mind, उसके मन में boundary wall is broken. जो उसका बाड़ा है वो गिर जाता है। So now he lives a compromised life. तो उसका वो अभी जीवन है ना, वो कमी इस जीता है कि वो बातें नहीं मानता। He'll come into the church. वो कलीसिया में He'll आता है, become a believer. वो विश्वासी बनता, He'll go to unbelievers. वो दूसरे अविश्वासियों के पास जाता है, He'll become like them. वो उनके जैसा बन जाता है। Why? If there is no healthy boundaries. क्योंकि कोई बाड़ा नहीं है उसके When जीवन nobody पे। is watching, जब कोई नहीं देखता उनको, he lives worse than an unbeliever. वो ऐसा जीवन जीता है जो वो नॉन बिलीवर से भी गया गुजरा है। But when people are watching, पर लोग देख रहे हैं उससे, he becomes the angel of the Lord. वो जब लोग देख रहे होते हैं तो स्वर्गदूत बन जाता है वो, Because there is no boundary. क्योंकि कोई बाड़ा नहीं है उसके Do जीवन you में। have a boundary in your thinking क्या आपके मन में कोई बाड़ा है आपके लिए that is broken? जो टूट गया है? Let me tell you what happens when the boundary wall in your mind is broken. क्या होता है जब आपके मन में जो आप बाड़ा बनाते हो सुरक्षा के लिए, जब वो टूट जाता है? The answer is उत्तर है worries attack you. जो चिंता है वो आपको आपके ऊपर अटैक करना शुरू करती है। Doubt attack you. जो डाउट है वो आप पे अटैक करता है, चिंता अटैक करती है। Fear attack you. जो डर है वो आपको अटैक करता है। Insecurities attack you. जो इनसिक्योरिटीज है वो आपको अटैक करती है। Negative thoughts fill your mind. जो गलत विचार है वो आपके दिल में भर जाते हैं। If you don't meditate on the word of God, अगर आप वचन पे मनन नहीं करते, you neglect reading of the word of God, अगर आप वचन को पढ़ते नहीं हो, ध्यान नहीं you देते, neglect praying, आप ध्यान नहीं देते और प्रार्थना नहीं you करते, neglect fellowship with the believers, अगर आप संगति नहीं करते, you may think I'm doing spiritually fine. आप सोच रहे हो कि आत्मिक जीवन में मस्त कर रहा I हूँ, guarantee you, पर मैं आपको गारंटी देता हूँ, watch, आप देखो thorns and thistles will come up in every area of your life. आपके हर जीवन के एरिया में कांटे आएंगे, Because the wall is broken.
क्योंकि जो बाड़ा है वो टूट गया है। The Lord is calling us to repair the wall. परमेश्वर हमें बुला रहा है ताकि वो बाड़े को हम फिर से खड़ा कर We सकें। have to take responsibility to build it. हमें जिम्मेदारी लेनी है उससे खड़ा करने की। Discipline is not the gift of Holy Spirit. अनुशासन पवित्र आत्मा का वरदान नहीं है. Discipline has to be cultivated. जो अनुशासन है वो आपको खुद बनाना पड़ता है। Do you know the gift of Holy Spirit is not training? क्या आप जानते हो पवित्र आत्मा का वरदान किसी को ट्रेन करना नहीं है। You have to give yourself to training. आपको खुद से होके ट्रेन करने के लिए देना होता है, आपको समर्पित करना होता है। I have a question. मुझे एक सवाल है, For 3 months you don't clean up your house, what happens? 3 महीने के लिए अगर आप आपका घर नहीं साफ करोगे तो क्या होगा? Do you go inviting dust? आप डस्ट को खुद बुला के आते हो, निमंत्रण देते हो मेरे घर पे आप? Do you go invite spiders? क्या आप स्पाइडर को बोलते हो आजा मेरे घर में? They come find their way. वो खुद ही आ जाते हैं Do घर you go में। inviting rats? आप रैट्स को, चूहों को बुला के आते हो घर पे? They come. वो आ जाते हैं। Flies come. जो मक्खी है वो आ जाती है, Dirt comes. जो डस्ट है वो आ जाता है। Spiritually, same thing happens. आत्मिक जीवन में भी यही होता है। You stop paying attention to what God has given to you. जो परमेश्वर ने आपको अगर दिया उस पर जब आप ध्यान नहीं देते And what happens? तो क्या होता? Everything starts crumbling. तो सब कुछ बिखरना शुरू हो जाता है। So church, it's high time कलीसिया, ये वक्त है we take an अभी inventory of our life. हम अपने जीवन को जांचें। What are the areas in my spiritual life that I am neglecting? मेरे आत्मिक जीवन में ऐसे कौन सी जगह है जिस पे मैं ध्यान नहीं दे रहा, Where faith is replaced by fear. जहाँ पे विश्वास की जगह पे डर है, Where assurance is replaced by doubt. जहाँ पे हमें हिम्मत होनी चाहिए, साहस होना चाहिए, वहां पे भी डाउट्स है। Where my courage is gone. जहाँ पे सामर्थ होना चाहिए वो अभी है नहीं, उस पे There कुछ is भी, no power in me now. अभी कुछ सामर्थ नहीं है I feel उधर। weak मुझे कमजोर महसूस होता है, confused. कंफ्यूजन है, and I live, I'm surviving. और मैं बस जीने के लिए जी रहा I'm हूँ, not thriving. मैं उन्नति नहीं कर रहा। That's a sign you're neglecting your walk with the Lord. वो एक तरीका है देखने का कि आप परमेश्वर पे ध्यान नहीं दे रहे, Because thorns are coming. क्योंकि कांटे उग रहे हैं, Thorns are coming. उग रहे हैं कांटे। Listen, my friend, I want you to know one thing. मैं चाहता हूँ आप एक बात समझे। God says वचन कहता है, the परमेश्वर कहता stone है, wall is broken. जो बाड़ा है वो टूटा गया है। Broken walls means जो बाड़ा जब टूट जाता है no moral boundaries. कि जो हमारे जीवन में नैतिकता खत्म हो जाती है। You don't have now, consciousness about right and wrong. आपके मन में वो ध्यान नहीं देता होता कि क्या सही है और क्या गलत What है, is moral, what is immoral. क्या नैतिक है और क्या नैतिक नहीं है, वो आपको समझ नहीं आता। Only personal comfort takes over everything else. कि अगर आपको खुद को आराम महसूस हो रहा है तो बस वही काफी है। No discipline. आपके जीवन में अनुशासन नहीं है, No protection. सुरक्षा नहीं है, No defense. आपके ऊपर खिलाफ किसी के रुकने का कोई सामर्थ्य नहीं है। There is no defense. Your defense is broken. जो सुरक्षा का बाड़ा है वो आपके जीवन पे नहीं So है। anything happens in news, अगर कुछ भी न्यूज में होता है, you have a sleepless night. आप सो नहीं पाते रात को। Anything happens politically, आप पॉलिटिक्स में कुछ होता है, you can't sleep in your home. आप सो नहीं पाते घर पे। Anything happens in financial market, अगर फाइनेंशियल मार्केट में होता है कुछ, you have a problem in your house. आपके घर पे प्रॉब्लम आ जाती है। Why? Because the boundary wall is broken. इसीलिए होता है क्योंकि सुरक्षा का बाड़ा गिर चुका है। But those who are strong in the Lord, पर जो लोग परमेश्वर में whose सामर्थी है, boundary walls are not broken, जिनका बाड़ा टूटा हुआ नहीं है, they are like Elisha. वो एलाइशा के जैसे है। They can stand in midst of on their problem, वो समस्या के ऊपर खड़े रहते हैं, and they say, more are for us than who are against us. वो कह पाते जो हमारे लिए वो बहुत है, उनसे ज्यादा जो हमारे खिलाफ है। Although the Syrian army has encamped all around his place, एलीशा के आसपास सीरियन की जो सेना थी वो खड़ी रही थी। his servant is saying, Master, we are destroyed. वो सेवक कहता है उन्हें कि अरे हम तो अभी नाश होने वाले हैं। But he say, hey, no, we are not destroyed. We have more from our side than you. वो कहते हैं कि हम नाश नहीं होने वाले क्योंकि
हमारे पास जो है वो कई ज्यादा है जो हमारे खिलाफ है। How is it that two people in the same circumstances have two different worldviews? ऐसे कैसे कि एक ही परिस्थिति के अंदर दो लोग अलग सोच रहे हैं। One can only see what enemy is doing. एक व्यक्ति वो देख रहा है कि शत्रु मेरे खिलाफ क्या कर Another रहा one है, can see what God is doing. दूसरा व्यक्ति वो देख पा रहा है कि परमेश्वर मेरे लिए क्या कर रहा है। How is it that David in midst of battlefield says, in front of my enemy you put a banqueting table for me? ऐसे कैसे दाऊद अपने शत्रु के बीच में ये कह सकता है कि तू मेरे शत्रुओं के सामने मेज बिछाता है। What is it? ऐसा क्या है Yes, there are governments collapsing. कि गवर्नमेंट तो अभी नीचे जा रही है, Yes, everywhere corruption is rising. हर एक जगह करप्शन हो रहा है, Economic stability is lost. जो इकोनॉमी है वो अभी सही नहीं है, Job creations are no longer valid. अभी किसी को जॉब मिलना आसान नहीं है, Corruption is at its best. करप्शन बढ़ते जा रहा है, News is sold out. न्यूज जो है अभी सही नहीं है, बिक चुकी है, Media, it cannot be trusted. मीडिया पे कोई भरोसा नहीं कर सकता, Justice has to be purchased जो न्याय है उसको उसका कीमत चुकाना पड़ रहा है अभी, because there is no justice. वहाँ पे न्याय है ही नहीं। This is the world we are living in today. ऐसा जगत है जहाँ पे हम जी रहे हैं, And in midst of all of these problems और उन सब के बीच में is my everyday in fear. क्या मेरा रोज का जीवन डर में जा रहा Am I है? living like a snail who is scared that any bird will watch and pick me up? क्या हम उस जानवर के जैसे जो डर में चलता है मुझे कोई पकड़ ना ले? Persecution against church is rising. जो सताव है कलीसिया के तरफ वो बढ़ते जा रहा The है, boundary wall is broken. जो बाड़ा है वो टूट चुका है, There is no hope for us. कोई आशा नहीं है हमारे लिए। Is that the mindset you live with every day? क्या ऐसे विचारों में आप जी रहे हो? If yes, अगर ऐसा है तो it's a sure evidence that your boundary wall is broken. ये दिखाता है कि आपका जो सुरक्षा का बाड़ा है मन में वो टूट चुका But है। those who walk in the word of God, पर जो वचन में चलते हैं, those who know the promises of the word of God, जो वचन को जानते हैं, they are strong in every season of their life. वो हर परिस्थिति में सामर्थ्य में रहते They हैं। are so strong. वो इतने सामर्थ्य में रहते Like हैं, Shadrach, Meshach and Abednego, they can say, "Oh King, वो शद्रक मेशक अबेदनेगो के जैसे कह सकते हैं, अरे राजा, our God can save us. मेरा परमेश्वर मुझे बचा सकता है। Even if He chooses not to save, अगर वो बचाता भी नहीं है तो we're not bound to your idols." मैं तेरे मूर्ति पूजक को झुकूंगा नहीं। What a confidence! ये सामर्थ कैसा है? In midst of crisis, these guys are confident. संघर्ष के बीच में भी वो सामर्थ्य में है। Listen, I will tell you something. मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, In a whole Bible, पूरे बाइबल में it's a story of crisis after crisis. हर एक के पास संघर्ष आते ही जाता है। Nobody in the Bible became great without a crisis. कोई भी महान नहीं बना बाइबल में अगर उसके जीवन में संघर्ष नहीं था तो। There are two ways to look at crisis. दो तरीके हैं संघर्ष को देखने का। A fearful man looks at crisis as a storm that destroys his life. एक व्यक्ति है जो डर से भरा हुआ था, वो ये देखता है कि संघर्ष मेरे जीवन को खत्म कर लेगा। But a man of faith looks at crisis as opportunity to grow. पर एक विश्वास से भरा हुआ व्यक्ति देखता है कि अरे संघर्ष आ रहा है, कोई नहीं, मेरे लिए एक संधि है आगे बढ़ने की है। Think about everything. हर एक के बारे में सोचिए, Every miracle in the Bible. हर एक चमत्कार जो हुआ Every बाइबल में, story of victory in the Bible. हर एक जो विक्ट्री आई बाइबल में। I think about Joseph. मैं यूसुफ के बारे में सोचता हूँ, Oh, there was a crisis. उसके जीवन में एक संघर्ष था। What was the crisis? और वो संघर्ष क्या था? The whole Egypt had famine. जो पूरा इजिप्ट था वहां पे अकाल आ गया था। Think about the crisis. आप सोचिए संघर्ष के बारे में। एक तो मैं जेल में हूँ, ऊपर से अकाल सा इतना बड़ा। That I am in the jail and now there is a famine. But something happened. पर कुछ तो हुआ। For other people, it was a doomsday. दूसरे लोगों के लिए वो एक मरने का दिन था, But for Joseph, it was a ladder to come out of prison. पर यूसुफ के लिए वो एक सीढ़ी थी आगे चढ़ने के लिए। Not only that, उतना ही नहीं, to make Joseph prime minister, God brought calamity over entire nation. यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाने के लिए परमेश्वर ने उस पूरे जगह पर, पूरे देश पे अकाल ला लिया। Listen to my word carefully. मेरे वचन को ध्यान से सुनिए। If you are a chosen one of God, अगर आप परमेश्वर के चुने हुए हो तो the calamity on your nation is not going to destroy you. आपके देश पे जो संघर्ष आया है वो आपको कभी डुबाएगी नहीं, But God will raise you up as an answer for that calamity. पर परमेश्वर आपको उस संघर्ष के बीच में एक उत्तर के जैसे खड़ा It's करेगा। beautiful to see what God can do. ये सुंदर सी बातें देखने के लिए परमेश्वर क्या कर Think सकता है। about David. दाऊद के बारे में He सोचिए, was a shepherd boy. वो चरवाहा था। One day a crisis happened. एक दिन संघर्ष आया, Goliath came. गोलियात आ गया। Guess what happened? तो फिर क्या हुआ?
as he overcame the crisis जैसे उसने उस पे जय पाया, from zero to national hero in one day. वो जीरो से राष्ट्र का हीरो बन गया। Joseph in one day from zero to national hero. यूसुफ एक दिन से जीरो से राष्ट्र का हीरो बन गया। Think about Noah. नूह के बारे में A सोचिए, crisis came. संघर्ष आया, Flood came, whole world died. जो फ्लड आया पूरा देश मर गया। But guess what happens? पर फिर क्या हुआ? Noah and his family alone became the owner of the whole planet. नूह और उसका पूरा परिवार पूरे देश पे, पूरे राष्ट्र पे, अर्थ पे राज्य करने लगा। Every book of Bible. हर एक जो बुक है बाइबल का, Come to the time of Nehemiah. नेहमाया के वक्त में आई The है। wall is broken. जो बाड़ा है वो टूट गया था, But what he does with that crisis makes him a hero in the Bible. पर वो जो संघर्ष के साथ करता है उसको उसने हीरो बना दिया। During the days of Moses, he is born in a crisis situation. मूसा ऐसे वक्त पे जन्म लिया जहाँ पे संघर्ष था पूरे राष्ट्र में। Crisis so bad that all 2 years baby are killed. ऐसा संघर्ष था कि 2 साल के बच्चों को सबको मार दिया। No hope. कोई आशा नहीं। Guess what happens? तो देखिए क्या हुआ। In midst of that crisis, वो संघर्ष के बीच the में boy is growing वो मूसा बढ़ने लगा in the Egypt इजिप्ट के as देश an में, Egyptian. एक इजिप्शियन के But जैसे in ही। midst of crisis, पर उन संघर्षों के बीच में something's happened. कुछ तो हुआ। God raises him up as a deliverer. परमेश्वर ने उसे खड़ा किया ताकि वो लोगों को छुड़ा सके। Something happened. कुछ तो हुआ। A crisis happened in his life. उनके जीवन में संघर्ष आया। He killed somebody उसने किसी को तो मार डाला। out of his zeal for justice. उसको न्याय चाहिए था इसलिए उसने मार दिया। He killed an Egyptian. उसने इजिप्शियन को ही मार डाला। He had no other option but to run away. पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो भाग गया Now वहां for से। 40 years, अभी 40 साल के there लिए is a crisis. वहां पे संघर्ष है। A prince is reduced to a shepherd. एक जो राजा का बेटा था वो एक सेवक बन गया। Now he has nothing for himself. अभी उसके पास कुछ नहीं है खुद के लिए। Absolute crisis. ऐसा एक संघर्ष है बहुत। But there, पर वहां पर भी God meets him. परमेश्वर उसे मुलाकात And in लेते that हैं crisis, और उसके बीच में changes him into a deliverer. उसको बना देते एक छुड़ाने के Your लायक। crisis may be long, आपका संघर्ष काफी लंबा हो सकता है, but just because crisis there doesn't mean plan of God is not there. अगर संघर्ष है इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर की योजना नहीं है। If the wall is broken, अगर आपका बाड़ा टूट गया है, with the word of God you can rebuild that wall. आपके वचन से उस बाड़े को फिर से बना सकते हो। You can see every book in the Bible. आप हर एक वचन में पढ़ सकते हो बुक During में। days of Esther there was a crisis. एस्तर के दिनों में भी संघर्ष था। Every Jew was about to die. हर एक यहूदी मरने वाला था। Esther overcame that crisis. एस्तर ने जय पाई उस संघर्ष के ऊपर। She became a hero in the Bible. वो हीरो बन गई बाइबल में। Do you understand? आप समझ पा रहे हो? All throughout New Testament, नई करार में apostles overcame crisis. जो प्रेरित थे उन्होंने संघर्षों पे जय As I पाई। begin to meditate on the word, जब मैं वचन पे मनन करने लगा, Bible is the book of celebration of those people who overcame crisis. बाइबल उन लोगों के बारे में आनंद बनाती है जो संघर्षों के ऊपर जय पाते हैं। Listen carefully. ध्यान से सुनिए, All throughout Bible, पूरे बाइबल में every celebrity in the Bible जो भी हर एक हीरो था बाइबल में, is a celebrity because they overcame crisis. वो सेलिब्रिटी इसीलिए क्योंकि उन्होंने किसी संघर्ष पे जय को पाया। What happened to Ruth? रूत के साथ क्या हुआ? She overcame crisis. वो संघर्ष पे जय पाई, Celebrating. उसको आनंद बना रहे उसके लिए, She became celebrity. वो सेलिब्रिटी बन गई। Every person in the Bible you pick up, हर एक व्यक्ति आप उसको उठाइए, they overcame crisis. वचन में उन्होंने संघर्ष पे जय को पाया। Today, if in your life there is crisis, अगर अभी आपके जीवन में संघर्ष है, it could be because of your laziness, वो इसलिए हो सकता है क्योंकि आप आलसी हो, or it could be because of an external problem. या ऐसे हो सकता है कि बाहर की परिस्थितियों के कारण वैसा हो गया आपके साथ। Whatever the reason is, कोई भी उसका कारण हो, if you begin to honor the word of God, पर अगर आप वचन का आदर करोगे, if you begin to prioritize the promises of the word of God, अगर आप वचन को पहला स्थान दोगे जीवन में, if you begin to abide in Jesus Christ, अगर आप यीशु मसीह में बने रहोगे, if you begin to do what the word commands you to do, अगर आप वो करोगे जो वचन आपको आज्ञा करने के लिए करता है, oh, you will, the season of crisis will be over. तो जो आपका संघर्ष का वक्त है वो खत्म हो You जाएगा, will remain, आप बने and रहोगे। your story will be a celebrity for another तो one. आपकी जो कहानी है उसमें आनंद मनाएंगे लोग, खुशी मनाएंगे। Listen, let me tell you one thing. एक बात बताना चाहता हूँ, Life comes in seasons. जो जीवन है वो मौसमों में आता है। Something beautiful about our life. एक सुंदर सी बात हमारे जीवन के लिए, It changes. वो बदलती है। I used to have perfect 2020 vision. मेरे पास एक दृष्टांत था 2020 का। 2020 vision. Now I have glasses.
मेरी जो दृष्टि थी आंखों की वो काफी अच्छी थी Now I have glasses. और अभी मुझे चश्मा लगाना पड़ रहा है. Things change. काफी चीजें बदलती है. The strength I had, no longer I have. जो सामर्थ मुझ में पहले थी वो मुझ में अभी नहीं है. Things change. चीजें बदलती है. But you know what? पर आप जानते हो क्या? Some things I'm losing, कोई चीजें मैं गवा रहा हूँ, but some things I'm gaining. कोई चीजें मैं पा रहा हूँ. And what I'm gaining और जो मैं पा रहा हूँ is amazing. वो काफी अच्छी बातें हैं. Now I have choice. मेरे पास चुनाव है. Should I keep mourning about what I'm losing? क्या मैं रोते बैठूं उन बातों के लिए जो मेरे पास नहीं है अभी, Or should I rejoice over what I'm gaining? कि मैं उन बातों पे आनंद बनाऊं जो मैं पा रहा हूँ? Now it depends on my mental status. वो मेरे मन पे निर्भर है. See, one day we all are going to die. एक दिन हम सब मरेंगे. If we don't die, we'll be transported in heaven. अगर हम मरेंगे नहीं तो हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में जाएंगे. So something will be happening. This place is not going to be permanent for us. कुछ तो होगा क्योंकि इस धरती पे हम हमेशा नहीं रहेंगे. Everything changes. हर एक चीज बदलती है. Winter is coming now. अभी ठंडी का मौसम आएगा, But this winter will not be permanent. पर ये ठंडी बने नहीं रहेगी. Few months later, summer will come. थोड़े महीनों के बाद फिर से And that will not be permanent. तो फिर से गर्मी आएगी, वो भी बने नहीं रहेगी. Then few days later, rain will come. उसके बाद बारिश आएगी. Listen, seasons will keep changing. जो मौसम है वो बदलते रहते Day and हैं. night happens. दिन और रात होते रहते Let me हैं. tell you one thing. मुझे आपको एक बात बताना है. Problems are never permanent in life. जो संघर्ष है वो बने नहीं रहते जीवन में. You may face challenges today. आप आज संघर्ष के द्वारा जा रहे Today हो. you may have given up hope. आपकी आज आशा आप गवा रहे हो. Today you feel discouraged. आपको आज डिस्करेज हो, Today you निराश हो. feel nothing is happening, Pastor. आपको आज लग रहा है कि पासवान कुछ नहीं हो रहा है. Let me tell you one thing. पर एक बात बताना चाहता Don't हूँ. give up. आप छोड़िए नहीं. Keep meditating on the promises of the word of God. वचन पे मनन करते रहिए. Keep fellowshipping. संगति करते Keep रहिए. doing what is right in जो- the sight of God. जो परमेश्वर के नजर में सही है वो करते रहिए. Don't worry about reward. आप ये देखें कि भेंट क्या The मिलेगी. Bible says, वचन कहता है wise man built his house on the rock, जो बुद्धिमान है उसने अपना घर पत्थर पे बनाया. and the foolish man built it on sand. जो मूर्ख व्यक्ति है उसने सैंड पे बनाया. Surprisingly, the storms came on both. जो स्टॉर्म आया, संघर्ष आया, दोनों पे आया. Jesus never said, यीशु मसीह ने ये नहीं if कहा you stand on my word, कि अगर तू मेरे वचन पे खड़ा you रहेगा will never have opposition. तो आपको कभी आपके कोई खिलाफ नहीं आएगा. Jesus never promised that. यीशु मसीह ने ऐसा वचन नहीं दिया. Jesus said, ये वचन दिया यीशु मसीह ने everybody who stands on the word कि जो वचन पे खड़ा रहेगा will be persecuted. उस पे सताव आएगा. There'll be problems. वहाँ पे संघर्ष There'll आएंगे. be challenges. समस्या आएगी. There'll be crisis. वहाँ पे संघर्ष आएंगे. But listen, पर सुनिए, that crisis will not be the end of your story. पर वो संघर्ष आपकी कहानी को रोक नहीं देंगे. You will outlast that season. वो आप मौसम से बाहर निकल आओगे. So today you may face problems. आज आपके पास समस्या है. Balaji, let me tell you, ब्रदर बालाजी मैं आपको बताना the चाहता हूँ problems you're facing in your company are not permanent. जो संघर्ष आपके कंपनी में हो रहे हैं वो बने नहीं रहेंगे. This time shall pass by. ये वक्त चले जाएगा. Continue to steadfast in the word of आप God. वचन में बने रहना. Continue to do what God calls you to do. जो परमेश्वर ने आपको करने के लिए बुलाया वो करते रहिए. Continue to walk with Him. आप परमेश्वर के साथ चलते And रहिए the seasons will change. और मौसम बदल जाएगा. Let me tell you one thing. मैं एक बात बताना चाहता हूँ, Nothing is permanent. कोई भी चीज बने नहीं So while रहती. we are here, तो जब तक हम यहाँ पे हैं be wise. तो बुद्धिमानी से चले. Not like a foolish person एक मूर्ख व्यक्ति के जैसे नहीं. who just says, today I'm sleeping, वो ऐसा नहीं कि आज मैं सो रहा हूँ. and then that's a self-inflicted problem. तो वो ऐसी समस्या है जो हम खुद पे खुद ही लेकर आते हैं. Don't be like that. वैसे ना बनिए. Don't live a careless life. ऐसा जीवन नहीं जिए जिस पे आप ध्यान नहीं देते. Investigate your life. आपके खुद के जीवन पे ध्यान दीजिए. Let me show you something powerful that Lord showed me. मैं एक वचन दिखाना चाहता हूँ जो परमेश्वर ने मुझे बताया. Genesis chapter 2. उत्पत्ति 2. Thus the heavens and the earth and all the host of them were finished. यो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया. And on the seventh day God ended his work which he had done, and he rested on the seventh day from all his work which he had done. और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था सातवें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे कामों को सातवें दिन पे विश्राम किया. Then God blessed the seventh day and sanctified it, because in it he rested from his work which God has created and made.
और परमेश्वर ने सातों दिनों पे आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे कामों में से विश्राम लिया। Now listen, pay attention to verse number 4 and 5. चौथे वचन पे ध्यान दीजिए। This is the history of heavens and the earth when they were created. आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का ये इतिहास है कि In the day the Lord God made the earth and the heavens. कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश का निर्माण किया। This is the history of the earth, God says. ये इतिहास है धरती का। Guess what is the history? देखिए इतिहास क्या है। Before any plant of the field was in the earth. तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था। Listen, before any plant of the tree was there. इससे पहले कि भूमि पे कोई पौधा आया, Before any herb of the field had grown. और न मैदान की कोई छोटा पेड़ उगा था। Why it had not grown? क्यों नहीं उगा था तब वो? For the Lord God had not caused it to rain on the earth. क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था। Why didn't rain on the earth? धरती पे बारिश क्यों नहीं हुई थी? Because there was no man to till the ground. और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। So what does Bible say? वचन क्या कहता है? Listen, सुनिए, the history of the earth is like this. भूमि का इतिहास ऐसा है God created the earth. कि धरती को परमेश्वर ने बनाया, There was a land, वहां पे भूमि थी, but nothing good was coming out. पर वहां पे से कुछ उपज नहीं आ रही थी। Now remember, the sin had not happened. Sin happened in chapter 3. इस वक्त पे पाप नहीं हुआ, पाप तीसरे अध्याय में आया। And God said, परमेश्वर ने the कहा land is cursed because of you. कि भूमि को मैंने श्राप दिया तेरे कारण, Now it will grow thorns and thistles. तो अभी कांटे और उसमें से बिच्छू पेड़ आएंगे। So now, तो अभी Genesis chapter 2, उत्पत्ति 2 में sin is yet to happen. अभी पाप होने का ही है, So thorns and thistles are yet to be made. तो कांटे अभी तक आने के ही है। God didn't create them. Our sin created them. तो परमेश्वर ने कांटे नहीं बनाए, हमारे पाप ने कांटों को बनाया। So the land was there, तो भूमि थी, but it couldn't produce anything. पर उसमें से कुछ उपज नहीं आ रही थी। Asset was there, भूमि थी it अच्छी, couldn't do anything. पर वो कुछ कर नहीं पा रही थी। Why? क्यों ऐसा? Because the rain had not happened. क्योंकि बारिश नहीं आई थी वहां And पे। the question, God, why didn't you give rain? तो सवाल ये था, परमेश्वर ने बारिश क्यों नहीं He दी? said, son, because there was no man to manage it. क्योंकि परमेश्वर ने कहा कोई मनुष्य नहीं था उसका ख्याल रखने के लिए। That's what the Bible says. वचन कहता है, This is the history of planet. ये वचन धरती का इतिहास है That a man has in-given capacity to take a plain land and create it into a fruitful place. कि एक मनुष्य के अंदर एक सामर्थ है कि वो एक भूमि जो खाली भूमि है उसमें वो उपज ला सकता है। What do I understand by this verse? ये वचन से मैं क्या समझता हूँ That if a man is given a place to work, कि अगर एक जगह दी जाती है मनुष्य को काम Rain करने के will लिए, come. तो बारिश तब आएगी, harvest will grow. उपज निकलेगी उधर से। That is a blessing a man carries. वो एक आशीष है जो एक मनुष्य लेके चलता है। Listen, that is a blessing a child of God carries. ये एक आशीष है जो परमेश्वर के बच्चे लेते हैं। Whatever you put your hands into, it will flourish. कि जिस किसी काम में आप आपका हाथ डालोगे वो उन्नति पाएगा, But you should put your hand into it. पर आपको आपका हाथ डालना पड़ेगा। If you just sleep in your bed, अगर आप आपके बिस्तर पे सोते रहोगे तो नहीं होगा। now God had many angels. परमेश्वर के पास काफी स्वर्गदूत थे, But because there were many angels, the land didn't become harvesting. क्योंकि स्वर्गदूत बहुत सारे थे इसलिए उपज नहीं आने लगी भूमि में Look से। at verse number 4, what it says. चौथा वचन क्या कहता है? These are the generations of the heaven and the earth when they were created in the day the Lord has made the earth and the heaven. आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का ये इतिहास है कि जब वे उत्पन्न हुए ही थे, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, And there was no plant on the field before it was in the earth. तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था, And every herb of the field before it grew. और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था। Nothing came up. कुछ भी नहीं आया बाहर। There was the earth, भूमि थी वहां पे, but nothing was there. पर उसके अलावा कुछ नहीं था। You getting my point? आप मेरी बात समझ पा रहे हो? There was the earth, भूमि थी, but nothing was there. पर वहां पे कुछ नहीं था, Just the land. सिर्फ भूमि थी खाली। Why? क्यों ऐसा? Because no one was there to manage it. क्योंकि कोई मनुष्य नहीं था वहां पे उसको ख्याल रखने के This लिए। verse tells me ये वचन मुझे बताता है God does not allow growth to happen until there is a manager.
तो परमेश्वर किसी भूमि पे या किसी जगह पे उन्नति को नहीं लाता जब तक वहां पे कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो उसका ख्याल रखे और देख रेख करे। So even though God can do everything, परमेश्वर खुद सब कुछ कर सकता He है, can speak and things happen, वो बोलता है और चीजें हो जाती है, but He certain things He doesn't allow to happen if He does not have a manager. पर अगर कोई चीजें वो होने नहीं देता अगर उसके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसकी देख रेख करने पाए। How are you developing yourself as a manager of God-given resources? आप खुद को कैसे बना रहे हो ताकि आप देख रेख करने के लिए अच्छे बन जाओ? Are you becoming a good steward of what God has given to you? जो परमेश्वर ने आपको दिया है क्या आप उसका अच्छे से ख्याल रख रहे हो? Good steward of your time. जो आपको वक्त दिया परमेश्वर ने क्या उसका अच्छा ख्याल Good रख रहे steward हो? of your talent. जो टैलेंट आपने दिया क्या उसका अच्छा ख्याल रख रहे Good हो? steward of your body. जो शरीर परमेश्वर ने दिया क्या उसका ख्याल रख रहे हो? Good steward of your mind. जो मन दिया परमेश्वर ने क्या उसका ख्याल रख रहे हो? Good steward of your spirit. जो आत्मा परमेश्वर ने दिया क्या उसका ख्याल रख रहे हो? Good steward of your family. जो परिवार परमेश्वर ने दिया क्या उसका अच्छा Good ख्याल रख steward रहे of हो? your finances. जो पैसे परमेश्वर ने दिए क्या उसका अच्छा ख्याल रख Good रहे steward हो? of your work. जो काम आपको परमेश्वर ने दिया क्या उसका अच्छा Listen ख्याल रख रहे हो? carefully. ध्यान से सुनिए। If you learn to manage well, अगर आप ध्यान से चीजों को देख रेख करोगे growth will happen. तो उन्नति आएगी। Let me tell you, मुझे एक बात बताना आपको, crisis makes millionaires. जो संघर्ष है वो लोगों को संपत्ति देता है, करोड़पति बनाता है। I was looking into corona history in India. जब कोरोना की बीमारी आई थी 2020 में तब मैं देख रहा In था the history of millionaires in India, जो इतिहास है उन लोगों का करोड़पतियों में जो लोग ने पैसे कमाया, corona time became the biggest invention time in India. तो कोरोना का एक ऐसा वक्त था जहाँ पे काफी सारी चीजों को इन्वेंट किया गया था। You know, there was no Blinkit before corona. कोरोना के पहले ब्लिंकिट ऐप नहीं था, There were no house delivery system. तब वहां पे लोग घर पे आके डिलीवरीज नहीं करते थे। Now it is a multi-million-dollar business. तो एक ऐसा अभी वो व्यवसाय बन गया कि वो करोड़ों में कमाते हैं। When was it born? ये कभी उत्पन्न हुआ? Crisis. संघर्ष के वक्त। There are people who are destroyed in crisis, but there are people who flourish in crisis. कई लोग हैं जो संघर्ष के वक्त पे नाश हो जाते हैं और कई लोग संघर्ष के वक्त पे उन्नति पाते हैं। As a child of God, एक परमेश्वर के बच्चे होने के नाते crisis is not designed to destroy you, it is designed to unleash the creativity in you. संघर्ष इसीलिए नहीं बनाए गए ताकि वो आपको नाश कर ले, पर संघर्ष इसीलिए बनाए गए ताकि जो अंदर परमेश्वर ने आपके रखा है वो बाहर आने पाए। So what you're struggling in your marriage, तो अभी जब आपकी शादी में आप संघर्ष कर what रहे you're हो, struggling in your family, जो आपके परिवार में संघर्ष कर what रहे you're हो, struggling in your finances, जो आपके पैसों में आप संघर्ष कर what रहे you're हो, struggling in any area of your life, या कोई भी एरिया में आप संघर्ष कर रहे हो, today there is an answer in the word of God. आज के दिन उत्तर है परमेश्वर के वचन में। Pick up the word of God, वचन को उठाइए, grow from there. वहां से आप आगे बढ़िए। Do you know before corona Zoom was very small, कोरोना के पहले जूम ऐप जो था वो काफी छोटा था, but after corona what happened? पर कोरोना के बाद क्या हुआ? It became a leading company in online platform. पर वो एक सबसे पहले स्थान पे कंपनी आ गई कि वो सारे ऑनलाइन मीटिंग्स के फर्स्ट स्टेप पे आ गई। Amazing. काफी अद्भुत सी बात है। You know why? आपको पता है क्यों? Because the creator of Zoom app did not keep crying over corona. तो जूम ऐप को बनाने वाला वो रोते नहीं बैठा जब कोरोना आया। He saw, okay, if I cannot go, I can create up something with software. उसने ये सोचा कि मैं अगर किधर जा नहीं सकता हूँ तो चलो सॉफ्टवेयर से कुछ बना लेता हूँ। You know, before corona, no church, like 90% churches were not online. आप जानते हो कोरोना के पहले 90% कलीसिया कभी यूट्यूब पे नहीं थी। Today, small church like us is online. तो हमारी जैसी भी छोटी कलीसिया भी अभी ऑनलाइन यूट्यूब पे है। Why? In corona, क्यों ऐसे? क्योंकि कोरोना के वक्त every में church became international. हर एक कलीसिया अभी इंटरनेशनल हो गई। Limits were taken off. जो बाड़ा था, जो लिमिट था वो टूट गया। What do you do in your crisis? आपके संघर्ष में आप क्या करते Do हो? you sit, complain and keep crying? आप सिर्फ कुड़कुड़ाते हो, रोने लगते हो, Or do you arise या फिर आप खड़े रहते हो with the lenses of God and the revelation of the word of God कि जो परमेश्वर ने दृष्टांत दिया और प्रकटीकरण दिया है and go and conquer in a greater measure? और उससे आप जय पाते हो हर एरिया में। I pray that every individual in our church मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक व्यक्ति कलीसिया में will take up responsibility वो जिम्मेदारी लेगा, to live life intentionally according to the word of God. वो एक चुनाव करेगा कि वो वचन के आधार पे जिए, That we will not live a loose life, कि हम एक हल्का जीवन नहीं जिएंगे, we will live an intentional life.
कि हम ध्यान पूर्वक ये We'll जीवन take care of जिएंगे, our marriage. हम अपने शादी का ख्याल We'll रखेंगे, take care of our family. हमारे परिवार का ख्याल We'll take रखेंगे, care of our church. हमारे कलीसिया का ध्यान We'll take रखेंगे, care of our business. हम हमारे व्यवसाय का ध्यान We'll take रखेंगे, care of our people. हम अपने लोगों का ख्याल Oh, रखेंगे, we'll take care of our bodies. हम अपने शरीर का ख्याल We'll take रखेंगे, care of everything God has given हम to हर एक us. चीज का ख्याल रखेंगे जो परमेश्वर ने And we दिया will है, walk in the victories of the और हम Lord. परमेश्वर के विजय में चलेंगे। Hallelujah. The हालेलुया। Bible says, वचन कहता if है, you meditate on the word of God, अगर आप वचन पे मनन if करोगे, you do what is written in the word of अगर आप God, वो करोगे जो वचन में लिखा है, you will prosper. आप उन्नति पाओगे। I prophesy in the name of Jesus मैं आपके जीवन पे भविष्यवाणी that करता हूँ crisis will not put a full stop to you, कि संघर्ष आपको रोकेगी नहीं, but crisis will become a stepping stone for you to go up higher. पर संघर्ष आपके लिए एक सीढ़ी बन जाएगी ताकि आप आगे बढ़ने पाओ, That every challenge will turn into कि opportunities. हर एक संघर्ष आपके लिए संधि बन जाएगी। Do you know in Japanese language there is no word for crisis? जापानीज लैंग्वेज में कोई वचन ही नहीं है जो संघर्ष को बताता है। Even in Chinese language there is no word for crisis. चाइनीज लैंग्वेज में कोई शब्द ही नहीं है जिससे आप संघर्ष बता It's सकते हो। funny, for crisis they have a word called opportunity. चाइनीज भाषा में संघर्ष का मतलब होता है संधि। You know, in 2008, 2008 में when the world was going through financial recession, जब पूरे जगत में पैसों की तंगी आ गई थी, Chinese were investing in other countries. जो चाइनीज लोग थे वो दूसरे देशों में पैसे डाल रहे They were थे, giving loans to other countries. वो दूसरे लोगों को लोन दे रहे थे When the world is going through recession. जब पूरा जगत तंगी में चल रहा था। You know why? ऐसा क्यों? Because in Chinese vocabulary, they don't have a word crisis. क्योंकि चाइनीज भाषा में संघर्ष जैसा कोई वचन ही नहीं है। In their vocabulary, there is opportunity. उनके भाषा में तो वो कहते हैं संधि है ये मेरी। Look to your neighbor and say, may your crisis turn into an opportunity आपके today. पड़ोसी को देख के कहिए आपका संघर्ष आपकी संधि बनने पाए। I say in Jesus' name, मैं यीशु मसीह के नाम से by कहता the हूँ, strength of the power of the word of जो God, परमेश्वर की सामर्थ्य है उससे, by his Holy Spirit, उसके आत्मा के द्वारा you are capable आप में वो to काबिलियत turn है your crisis into an opportunity. आपके संघर्ष को एक संधि में बदलने के लिए। Amen. आमेन। Collectively grow together एक साथ बढ़ते रहिए and build the kingdom of God. और परमेश्वर के राज्य को बनाइए। Let us stand up together as we bring this message to close. आइए हम खड़े रहिए ताकि हम अंत करें इस मैसेज का। I don't know how your marriage is, मैं नहीं जानता आपकी शादी कैसी है, but the Bible says, पर वचन कहता है I went through a field of a man कि मैं एक आलसी व्यक्ति के खेत के ओर से गया and I saw और मैंने देखा that his vineyard and his field कि उसका जो खेत था was full of thorns, उसमें कांटे लगे थे full of bushes, और उसमें बिच्छू पेड़ थे and the stone wall was broken. और जो बाड़ा था वो गिर गया था। I don't know what is the condition of your life today, मैं जानता नहीं हूँ आपके जीवन की परिस्थिति कैसी है, but if this is the condition पर अगर ये परिस्थिति आपके in जीवन any की area of your life, किसी भी क्षेत्र में आपके जीवन you के feel like this, आपको अगर ऐसा महसूस होता है, then today there is hope. आज से आपके लिए आशा है। The Bible says in Ezekiel, वचन कहता है इज़िकियल I में, look for a man who will stand in gap and repair the broken wall. मैं एक व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ जो बीच में रुकेगा और जो दीवार गिर गई है उसको वो खड़ा करेगा। God is looking for a man. एक व्यक्ति को परमेश्वर ढूंढ रहा Oh God, है। if you see there is a wall broken, why can't you build it? परमेश्वर अगर तू टूटा हुआ दीवार देखता तो तू खुद क्यों नहीं बनाता? Because God says, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है, listen, सुनिए earth was there, I made the earth, कि धरती को मैंने बनाया, but there was no rain because man was not there. पर वहां पे मैंने बारिश नहीं दी क्योंकि यहाँ पे मनुष्य नहीं था। There was no field, no कोई- crop because no man was there. कोई उपज नहीं थी क्योंकि वहां पे कोई मनुष्य नहीं था। Listen, सुनिए, without your cooperation, आपके संगति के बिना God will not give growth. परमेश्वर उपज नहीं लाएगा। There is a human responsibility, हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है divine provision, कि परमेश्वर पूरत करेगा and man's responsibility. और जो मनुष्य की जिम्मेदारी है Together makes a beautiful story. वो एक साथ एक सुंदर कहानी को बनाती है। So you rise up for your responsibility आप खुद की जिम्मेदारी में खड़े रहिए, and live a responsible life. एक जिम्मेदार जीवन जिए। Father, I thank you for this congregation. पिता, मैं सभी लोगों के लिए धन्यवाद करता हूँ। They are your people, Lord. ये तेरे लोग हैं प्रभु, You love them, Lord. तू उनसे प्यार करता है, You're building them, Lord. तू उन्हें बना रहा I है। pray in the name of Jesus. मैं प्रार्थना करता हूँ मसीह If के there नाम is से, anybody, oh God, अगर कोई है यहाँ पर in whom they are suffering कि अगर वो कोई समस्या या the संघर्ष से जा रहा results है of neglecting, क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया, Father, I pray today, मैं प्रार्थना करता हूँ may your आज Holy Spirit shake every dust of slothfulness in them.
पवित्र आत्मा जो भी डस्ट उनके जीवन पे है, जो भी आलसीपना उनके जीवन में, तू उसे निकाल दे। Let them be disciplined, Lord. वो अनुशासन में रहे, Let them arise. में वो खड़े हो जाए, Let them do what they must do, वो करने पाए जो उन्हें करना चाहिए, so that you can do what only you can do. ताकि तू वो करने पाए जो सिर्फ तू कर And सकता Lord, है। in midst of our problems, हमारे संघर्ष समस्या के that we बीच will में go from glory to glory and victory. कि हम महिमा से महिमा और विजय में I जाए। commit my people into your hand, Lord. मैं मेरे लोगों को तेरे हाथों में देता Only हूँ। you are the author and the finisher of all good things. सिर्फ तू ही शुरुआत करने वाला और खत्म करने वाला So है। take our lives into your hand, Lord. हमारे जीवन को तेरे हाथों में Help ले। us to reevaluate what we do and why we do. हमारी सहायता करके हम खुद को परखने पाए कि हम Give क्या us a कर रहे better हैं, why to do, Lord, कि हमें एक कारण दे कि हम क्यों कर रहे हैं so that चीजें, we may do what you have called us to do. ताकि हम वो करने पाए जो तूने हमें बुलाया In the करने name के of लिए। Jesus. यीशु मसीह के नाम Let no से one feel lonely and isolated, किसी को भी अकेलापन महसूस ना हो, but they may feel the strength of the Lord. पर वो परमेश्वर की सामर्थ्य को Lord, महसूस those who are करने पाए। absent today in the church, आज जो लोग नहीं आने पाए प्रभु, only you know what's their heart condition. तू जानता है उनके हृदय की परिस्थिति क्या I है। pray, would you minister to them at their point of need, मैं प्रार्थना करता हूँ कि तू उनके हृदय में सेवकाई कर, and may their life never be the same again. उनका जीवन पहले जैसा नहीं होने पाए। Remember them, Lord, उनको याद कर प्रभु, and gather them into your fold. और उनको तू तेरे पास लेकर आ। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमेन। Amen. Amen. Let's give a loud clap offering to Jesus आइए Christ. परमेश्वर को धन्यवाद दें।